Hello dear students, this is Professor Kavita Brahmankar and I welcomes you to the lecture series of computer graphics, and today we are going to cover 2D scaling transformation under Unit 4. Unit outcomes are: after watching this video, you will be able to define transformation, define scaling transformation, and solve numericals based on scaling transformation. Course outcome that will get achieved after watching this video is CO4. That is, you will be able to develop programs for 2D and 3D transformation, and program outcomes that will get satisfied are PO1. So, improvement in the basic knowledge. PO2, computer engineering discipline knowledge will get improved. PO7, ethics will get improved. PO8, you will be able to work individually and in a teamwork. PO9, oral and written communication of student will get improved. And PO10, lifelong learning, that is, in case of any technological changes in computer graphics rotation topic, then you will be able to adapt that changes. The prerequisite to this topic is you should have basic knowledge of X and Y coordinate system, and you should have prior knowledge of translation transformation and rotation transformation. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा है ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. सो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एंड रीपोजिशनिंग द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. किसी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है, कुछ चेंजेस करने हैं उसमें, या फिर उसकी स्क्रीन पे पोजीशन चेंज करनी है. सो इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. 2D ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 2D प्लेन होना जरूरी है. एंड ट्रांसफॉर्मेशन हमें कब लगने वाला है? जब हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करनी है स्क्रीन पे, उसका साइज चेंज करना है, या फिर उसको अलग ओरिएंटेशन से व्यू करना है. एट दैट टाइम वी विल नीड ट्रांसफॉर्मेशन. सो लेट अस see what is scaling transformation. So in computer graphics, scaling is a process of modifying or altering the size of object. Simple words में हम बोलेंगे कि इमेज के साइज में अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, इमेज या ऑब्जेक्ट के साइज में कुछ अल्टरेशन करना है, सो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्केलिंग. स्केलिंग में बी यूज to increase or reduce the size of object. ऑब्जेक्ट का साइज रिड्यूस करना है या इंक्रीज करना है, so that will be performed by scaling transformation. Scaling subjects the coordinate points of the original object to change. स्केलिंग में हमें हमेशा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स है, वो चेंज हुए देखेंगे. अब स्केलिंग डिपेंड्स ऑन द स्केलिंग फैक्टर. स्केलिंग फैक्टर एक टर्म है, उसके ऊपर हमारा स्केलिंग परफॉर्म ट्रांसलेशन डिपेंड है. सो अगर स्केलिंग फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, देन ऑब्जेक्ट साइज इज इंक्रीज, एंड इफ स्केलिंग फैक्टर इज लेस देन 1, देन ऑब्जेक्ट साइज इज रिड्यूस. स्केलिंग फैक्टर अगर 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली हमारे ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज होने वाला है, और अगर स्केलिंग फैक्टर छोटा है 1 से तो हमारे ऑब्जेक्ट का साइज रिड्यूस होने वाला है. सो कंसिडर अ पॉइंट O हैज टू बी स्केल्ड इन अ 2D प्लेन. इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट O, x old and y old. X old and y old, these are the original objects, and scaling factor in x direction is Sx, and scaling factor in y direction is S1. And after scaling जो भी न्यू कोऑर्डिनेट्स हमको मिलने वाले हैं, so those are x new and y new. So in matrix form, scaling equations or scaling matrix can be represented as x new and y new equals to Sx
एंड xy। डायगोनली हमको लेना है sx एंड xy और दूसरे डायगोनल एलिमेंट्स हमको 0 बनाने हैं into x old and y old matrix. So if we have to calculate a value of x new, then it will be x old into sx, x old into sx. And if we have to calculate y new, then it will be y old into sy. So अगर डायग्रामेटिकल फॉर्म में हमको देखना है, so this is our original object and after scaling हमने स्केलिंग फैक्टर 1 से बड़ा लिया है, मीन स्केलिंग फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, तो हमारे ऑब्जेक्ट हमको इस तरह से मिलने वाला है। सो ये इंक्रीज फॉर्म में हमको दिखने वाला है क्योंकि स्केलिंग फैक्टर हमने 1 से ग्रेटर बना दिया है। सो नाउ विल सी प्रॉब्लम्स ऑन स्केलिंग। गिवन अ स्क्वायर ऑब्जेक्ट विद कोऑर्डिनेट पॉइंट्स a 0 3, b 3 3, C 30 एंड D 0 0। हमारे पास एक स्क्वायर दिया है जिसके 4 पॉइंट्स हमको दिए हैं। अप्लाई द स्केलिंग पैरामीटर 2 टूवर्ड्स x एक्सिस, मीन्स हमको x की वैल्यू है दैट इज 2 एंड टूवर्ड्स y एक्सिस इज 3, sy इज 3 एंड ऑब्टेन द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमको x न्यू और y न्यू कैलकुलेट करना है। सो first of all, we'll write given parameters. So old corners or old coordinates of the square are a, b, c, d like this. Scaling factor in x-axis is 2 and scaling factor in y-axis is 3. So all this is given data. Then let us consider for coordinates a 0 3. ये हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट से अब इसमें क्या चेंज होने वाला है वो हम देखेंगे। सो अप्लाइंग द स्केलिंग इक्वेशन, अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं, स्केलिंग मैट्रिक्स लेते हैं तो हमको x न्यू की वैल्यू मिलती है x न्यू इक्वल्स टू x ओल्ड इंटू sx। सो x ओल्ड इज 0, मीन्स x वैल्यू इज 0, ओरिजिनल वैल्यू इज 0 एंड sx का जो वैल्यू है दैट इज 2। सो x न्यू हमको मिला है 0 एंड y न्यू that is y old into sy। y old की वैल्यू है 3 एंड sy की भी वैल्यू है 3, सो y न्यू की वैल्यू मिल गई 9। तो अब न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर a आफ्टर स्केलिंग इज 0 एंड 9। सो स्केलिंग परफॉर्म करने के बाद हमको a के न्यू कोऑर्डिनेट्स मिले हैं 0 9। उसी तरीके से हमको b के लिए भी कैलकुलेट करने हैं। सो x old for b is 3 and sx is 2, so it is 6 and for y new y old into sy, y old की वैल्यू है 3 and sy की वैल्यू है 3, so y new equals to 9। तो इस तरीके से हमने b के कॉर्नर्स भी कैलकुलेट किए हैं 6 9। so same for again 3 corner that is c। so c के वैल्यूज है, ओरिजिनल वैल्यूज है 3 0, आफ्टर स्केलिंग हमको मिलने वाले हैं x ओल्ड इज 3 एंड sx की वैल्यू है 2, सो इट इज 6। y न्यू इक्वल्स टू y ओल्ड इंटू sy, y ओल्ड की वैल्यू है 0 एंड sy की वैल्यू है 3, सो इट इज 0। सो आफ्टर स्केलिंग c के पॉइंट्स हमको मिले हैं 6 0। सो फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट d। सो d के ओरिजिनल वैल्यू है 0 0 एंड आफ्टर अप्लाइंग स्केलिंग सो हमको मिला है फिर से 0 0। तो इस तरीके से हमने a b c और d तीनों के कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए हैं। सो ये हमारा पुराना वाला था स्क्वायर। सो उसकी वैल्यू 3, a की वैल्यू 3 0 3, b की वैल्यू 3 3 3, c की वैल्यू 3, c की वैल्यू थी यहाँ पे 3 0 एंड d की वैल्यू थी हमारी 0 0। तो इस तरीके से हमने ये स्क्वायर ड्रॉ किया है। आफ्टर स्केलिंग फैक्टर हमारा था x डायरेक्शन में 2 एंड y डायरेक्शन में 3, मींस स्केलिंग फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। 2 एंड 3 दीज वैल्यूज आर ग्रेटर देन 1, सो ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है वो इंक्रीज होने वाला है। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग एंड प्लॉटिंग द स्क्वायर वैल्यूज आर a 0 9
सो A is 0 and 9. यहाँ पे A पॉइंट आएगा, B 6 9, B की वैल्यू है 6 in x डायरेक्शन एंड 9 in y डायरेक्शन, तो ये है हमारा B. C की वैल्यू है 6 0, 6 in x डायरेक्शन एंड 0 in y डायरेक्शन, तो हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, एंड D is 0 0. तो इस तरीके से हमारा आफ्टर स्केलिंग ऑब्जेक्ट दिखने वाला है. So in this way we can solve the numericals. So let us summarize. Today we have studied what is scaling transformation and how to perform scaling transformation. So dear students, if you have any queries or you are stuck somewhere, then watch the videos frequently or feel free to call me anytime, or you can reach on the following email ID. Thank you for watching the video. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much.